پاکستان اور انڈونیشیا میں 75 سالہ گہری دوستی، دو طرفہ تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاکستانی ڈاکٹر اور ماہرین انڈونیشیا میں خدمات سر انجام دیں گے۔ تعلیم، تجارت، زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں 7 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دو طرفہ تجارت بڑھانے کا عزم، کہتے ہیں پاک انڈونیشیا تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ انڈونیشین صدر شاندار میزبانی پر پاکستان کے شکر گزار، JF-17 طیاروں کی سلامی اعزاز قرار دی۔ انڈونیشیا کے صدر کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر دیا گیا۔ انڈونیشیا کے صدر کو نشان پاکستان دینے کی خصوصی تقریب، آصف علی زرداری نے مہمان صدر کو اعزاز سے نوازا۔ انڈونیشیا کے صدر کی آصف علی زرداری سے ملاقات، مختلف شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایوان صدر آمد پر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور صدر انڈونیشیا کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر گفتگو ہوئی۔ صدر انڈونیشیا کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف۔ تربیت، انسداد دہشت گردی اور استعداد کار میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ دفاعی تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں، خود مختاری اور دفاع وطن کے لیے پرعزم۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کہتے ہیں 1971 میں پاک بحریہ دشمن کے لیے سمندر میں سیسا پلائی دیوار تھی۔ نیوی آج بھی بحری سرحدوں پر آہنی فصیل ہے۔ 9 دسمبر 1971 کو آبدوز ہنگور کے عملے نے جاں بازی کی درخشندہ تاریخ رقم کی۔ یہ تاریخ آج تک دشمن کے ذہن پر نقش ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا ہے 8 جدید ہنگور آبدوزیں شامل کی جا رہی ہیں۔ بحریہ ہر محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہنگور ڈے پر نیوی کی دستاویزی فلم ہدف جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزراء سے ملاقات۔ برطانوی وزیر مملکت داخلہ اور نائب وزیر خارجہ شامل۔ انسداد منشیات اور مجرموں کی حوالگی پر بات چیت۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ پاک برطانیہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ بلاول بھٹو کا سیلز ٹیکس وصولی صوبوں کو دینے کا مطالبہ، کہتے ہیں معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چل سکتی، حکومت تاجروں صنعت کاروں کو عزت دے، ٹیکس وصولی کے لیے دھونس کا معاملہ نہ اپنایا جائے۔ وزیر اعظم سینٹرلائزیشن اور ہم ڈی سینٹرلائزیشن پر یقین رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کام کرتی رہے گی۔ ملک کی معیشت کو IMF کا طاقتور انجیکشن۔ IMF اسی ہفتے $1.2 ارب دے گا۔ IMF کا ٹیکس اصلاحات پر زور۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آمدن میں اضافے کے لیے ٹیکس اصلاحات ضروری ہیں، توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی جائیں، اداروں کی بھی نجکاری ہونی چاہیے۔ IMF کی سیلاب کے باوجود معاشی اصلاحات کی تعریف، امید ظاہر کی کہ مہنگائی میں اضافہ عارضی ہے۔ پاکستان میں کرپشن کم ہو گئی، شفافیت میں اضافہ۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے رپورٹ جاری کر دی۔ 66% پاکستانیوں کے مطابق ایک سال کے دوران سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینا پڑی۔ 43% پاکستانیوں نے قوت خرید میں بہتری کی رائے دی۔ 60% شہریوں نے کہا حکومت نے IMF معاہدے پر عمل درآمد اور فیٹو گرے لسٹ سے نکل کر ملکی معیشت کو مستحکم کیا۔ رپورٹ کے مطابق ملکی معیشت اب ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان میں انسداد بدعنوانی کے سفر کی نئی سمت۔ نیب نے 123 کھرب روپے سے زائد کی رقم ریکور کر لی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی رقم کی ریکوری ممکن ہو سکی۔ 2 سال اور 9 ماہ میں 114 کھرب روپے کی ریکوریز ہوئیں۔ ریکوری نیب اصلاحات میں عالمی معیار کی درستگی کا ثبوت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین نیب اور ٹیم کو خراج تحسین، کہتے ہیں شفافیت سے کام کے لیے نیب کو مکمل ادارہ جاتی آزادی حاصل ہے۔
वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ताजिक सफ़ीर से मुलाकात। ज़रई और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली गुफ्तगू। ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान की ज़रई सलाहियत को सराहा। राना तनवीर ने ताजिकिस्तान को 1 लाख टन गोश्त की बरामद को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा ताजिकिस्तान की ग़ज़ाई और लाइव स्टॉक ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखते हैं। गोश्त, फल और चावल की बरामद बढ़ाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। ताजिक सफ़ीर की राना तनवीर को सकाफ़ती हफ्ते में शिरकत की दावत। असम्बली पंजाब का ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान पंजाब हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करता है जिन्होंने भारत जैसे 5 गुना बड़े दुश्मन मुल्क को बिछाड़ कर रख दिया के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और इसके बानी और लीडरान पर पाबंदी लगाई जाए। जो इस करारदाद के हक़ में हैं हाँ कहें, जो इसके ख़िलाफ़ हैं ना कहें। मेरे ख़्याल में फ़ैसला हाँ वालों के हक़ में है, हाँ वालों के हक़ में है। ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो। बानी और पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए। पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने भी पीटीआई पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। कहा ये सारी छावनियाँ जलाकर बैन नहीं हो रहे, क्या ये अनोखे लाडले हैं? अज़वा बुखारी के पीटीआई पर वार। बोली बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद हैं, कभी देसी कुक्कड़ का नागा नहीं करते। बानी की ज़हनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जो अच्छी खबर है वो इस फितना फसाद ग्रुप के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान जो है वो अगर माशी लिहाज से तरक्की करे वो इनके लिए बुरी खबर है। जो अडियाला का कैदी है वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। पता नहीं किसी अफगानी के ऊपर आ गया कि उसकी जान को खतरा है। वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, 100 दफा बताया। देसी कुक्कड़ का नागा उन्होंने कभी नहीं किया और अब तो उनको ये फैसिलिटी भी है कि वो बाहर से फ्राइड फिश भी मंगा लेते हैं। फिर भी भाई वो मजलूम है। हमारा तो सूबाई सेक्रेटरीट जो है वो अडियाला शिफ्ट हो गया है। हमारे सीएम साहब रोजाना उधर बैठे होते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहबान परेशान हैं कि हम क्या करें। अडियाला में जो शख्स बैठा हुआ है इमरान खान साहब, उनको सजा हुई है, उनकी वो कन्विक्टेड हैं। उनकी सजा जो है वो डी चौक या अडियाला से माफ नहीं हो सकती। उनकी अगर सजा माफ होनी है अदालतों से होनी है। आज अगर हमें फोकस करना चाहिए था कि हम वफाक के पास जाएं, हम दलील और दलाल के साथ उनके साथ लड़ें। अमन होगा तो डेवलपमेंट काम भी होंगे और खुशहाली भी आएगी और तरक्की भी होगी। कबायली अजलाओं में दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। वज़ीर आला KP अमन पर तवज्जो दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहते हैं फैसल सोहेल आफरीदी KP का मुकदमा अडियाला में ना लड़ें। सड़कों पर एहतजाज से बानी की सजा मुआफ नहीं होगी। एबटाबाद में कत्ल की गई डॉक्टर वर्दा का पोस्टमार्टम। लेडी डॉक्टर को अगवा के फौरन बाद कत्ल कर दिया गया था। गला दबाकर मारा गया। लाश ठंडियानी में दफनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मरकजी मुलजिम शमरेज की गिरफ्तारी के लिए छापे। SHO को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का नोटिस JIT बनाने का हुक्म। DPO हारून रशीद ने मामले पर JIT तश्कील दे दी। CTD, वकला, डॉक्टर्स और पुलिस अफसरान शामिल। शिकारपुर में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन। 9 डाकू हलाक हो गए। DSP ज़हूर और खातून DSP पारिस जख्मी। दोनों जख्मी DSPs मियाँ बीवी हैं। मियाँ बीवी ऑपरेशन में साथ ड्यूटी दे रहे थे। डाकू की फायरिंग से 2 एहलकार भी जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डाकू के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। कराची गुलशन इकबाल में फ्लैट से खवातीन की लाशें मिलने का ड्रॉप सीन। बाप बेटा ही आशियाने को उजाड़ने के जिम्मेदार निकले। तफ्तीश में इंकशाफ। मुलजिमान पर 1.5 करोड़ से ज़ायद का कर्जा था। जान छुड़ाने के लिए कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जूस में जहर मिलाकर खवातीन को पिलाया। खवातीन को जहर देने के बाद मुलजिमान ने भी जहर पीना था। बेटे की हालत गैर देखकर बाप की जहर पीने की हिम्मत न हुई। फैसलाबाद में खामद ने बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 45 साल खातून झुलस कर जख्मी, अस्पताल दाखिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में CCD का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में गुज़श्ता रात मुकाबलों में 5 मारे गए। सूबे में एक हफ्ते में 106 से ज़ायद मनशियात फरोश हलाक हो चुके। CCD के मुताबिक मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में 17 पुलिस एहलकारों को भी हिरासत में लिया जा चुका।
पंजाब में अब कैंसर और दिल के मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। मरियम नवाज का कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत होगी। पंजाब में पहले मरहले में 50,000 मरीज मुस्तफीद होंगे। चीफ मिनिस्टर कार्डियोलॉजिक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड के जरिए मुफ्त सर्जरी की जाएगी। मरियम नवाज ने फालिज के बरवक्त इलाज के लिए भी प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स ने तिजारती सामान की तरसील रोक दी, अड्डे बंद कर दिए। लाहौर में अकबरी मंडी, गल्ला मंडी में सामान की तरसील मुअत्तल। अद्वियात, अशिया खुरनोश समेत बुनियादी अशिया की तरसील भी बंद। FIRs, भारी जुर्मानों से गुड्स अड्डे नहीं चला सकते। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ ट्रांसपोर्ट अलायंस के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। आज़ाद कश्मीर में भी PSL का मैदान सजने को तैयार। मोदी की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के जवाब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में PSL मैच कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम को बेहतरीन अंदाज में तैयार किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल मैच भी होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान जन्नत नज़ीर वादी में खेल के जरिए अमन की तारीख लिख रहा है। अमन, खेल और तरक्की कश्मीर की असल शनाख्त है। बसंत से कबल पतंग और डोर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। पतंग, डोर साजों, फरोख्त कंदगान और पतंग एसोसिएशंस की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार भी तैयार। पतंग और डोर बनाने, बेचने और ख़रीदने के लिए फॉर्म A लाजिम करार। डोर और पतंग का साइज़, मटीरियल और मयार मुकर्रर। गैर मयारी या केमिकल डोर की तैयारी और फ़रोख्त मुकम्मल तौर पर ममनू होगी। बरतानिया ने टिकटॉकर रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख कर दिया। रजब भट्ट के पास 2027 तक बरतानवी वीज़ा था। बरतानवी होम ऑफिस ने रजब भट्ट को तहरीरी आगाह कर दिया। बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। रजब भट्ट आज सुबह पाकिस्तान जाने वाली परवाज़ से रवाना हो गए। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत। भारत को रूस से पींगे पढ़ाना महंगा पड़ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नए टैरिफ की धमकी दे दी। कहा, अमेरिकी मार्केट में भारतीय चावल की डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय चावल की दरामद से अमेरिकी किसान बुरी तरह मुतासिर है। ट्रंप ने कनाडा से दरामदशुदा खाद पर भी मुमकिना टैरिफ आयद करने का इंदिया दे दिया। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 7 अफराद सवार थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा एक धमाके के साथ फजा में 2 टुकड़े हो गया। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि AN-22 फौजी कार्गो तैयारा मुरम्मत के बाद एक आजमाइशी परवाज पर था। कौमी खिलाड़ियों की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने का सिलसिला जारी। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी BBL में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स और शाहीन आफरीदी ब्रिस्बेन हीट की जानिब से खेलेंगे। शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और हसन अली ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके। बिग बैश लीग 14 दिसंबर से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम आइंदा माह पाकिस्तान आएगी। ऑस्ट्रेलिया का वफ्द इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच गया। रैकी टीम मामूल के दौरे में वेन्यूज़ का जायजा लेगी। PCB और सिक्योरिटी हुकाम ब्रीफिंग भी देंगे। T20 सीरीज के 3 मैच लाहौर में होने का इम्कान। जिलानी पार्क लाहौर में गुलदाउदी नुमाइश के जलवे बरकरार। शहरी रंगों और फूलों की बहार देखने के लिए पहुंचने लगे। पीले, नारंगी, गुलाबी, सफ़ेद समेत मुख्तलिफ फूल शहरियों पर सहरदारी करने लगे। नुमाइश में फूलों से मुख्तलिफ मॉडल्स भी बनाए गए। रंगारंग फूलों की नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। और सुरों की शान राहत फ़तेह अली खान, मौसीकी की दुनिया के उस्ताद की आवाज़ सरहदों की कैद से आज़ाद। राहत फ़तेह अली खान 51 बरस के हो गए। कवालियाँ, गीत और गज़लें आवाम में बेहद मकबूल।